This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، مکس نیوز کا علمی ادبی پروگرام اہل قلم اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی. دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. ناظرین، آج ہمارے مہمان ذوق جمالیات اور فنون لطیفہ سے آپ کی دلچسپی ہر کس و ناقص کے علم میں ہے. مکس نیوز پر آبی وسائل کے حوالے سے شورۂ آفاق پروگرام مکس اسپیشل کے میزبان وطن عزیز کی انتہائی ممتاز و ممیز شخصیت جناب انجینئر ممتاز احمد خان ہمارے مہمان ہیں. میں اہل قلم کی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں. خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کے بارے میں اگر کچھ کلمات محبت آپ کہنا چاہیں. راجہ کوثر سعیدی بھائی، سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کا، آپ کا، اور خاص طور پر اپنے بھائی اور دوست اکمل وینس، جو کہ اس سارے پروگراموں کے روح و رواں ہیں، یقیناً میں آپ سب کا نہایت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں مکس اسپیشل پروگرام میں پاکستان کے جو آبی مسائل ہیں جی ان پر ہر ہفتے میری گفتگو ہوتی ہے، اور ہم اس پر کافی سارے پروگرام کر چکے ہیں. اور مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی، یہ حالانکہ میں بہت عرصے سے میں یہاں کا پیدائش باشندے ہیں آپ یہاں کے، لیکن اکمل وینس نے جس طریقے سے میری جو معلومات ہے اور جو میرا علم ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پانی کے حوالے سے جو مجھے صلاحیت بخشی ہے، اگر اس کا صحیح طور پر قوم کے لیے جو اس کی جو یوٹیلائزیشن جو ہے وہ یہ مکس اسپیشل یا مکس نیوز یہ پروگرام کر رہا ہے، اور یقیناً اس کا تمام تر سہرا اکمل ویس بھائی کے ساتھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم اور آباد رکھے. گویا جو جنوبی پنجاب کی علمی، ادبی اور سماجی محرومی تھی، مکس نیوز نے اور روزنامہ بدلتا زمانہ نے بالکل اسے دور کیا ہے. بالکل ایک ویکیوم تھا، ایک اچھا بلا خلا تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہا. اور مکس نیوز نے اور مکس اسپیشل نے حقیقت ہے اس خلا کو پور کیا ہے. وگرنہ دیکھیں نا، لوگوں کو کراچی، لاہور یا پنڈی جانا پڑتا تھا، وہاں کون جائے پروگرام کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قلمی جہاد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حالانکہ ہمارا یہ جو وسیب ہے، ہمارا سرائکی وسیب ہے، اور ہمارا یہ علاقہ اور ملتان، بہاولپور، رحیم بیار خان، یہ علاقے یہ ٹیلنٹ سے بالکل ایسی ہے. بالکل، یعنی اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں، میں آپ کو بتاؤں. اور زندگی کے ہر شعبہ میں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ فنون لطیفہ ہو، چاہے وہ ادب ہو، چاہے صحافت ہو. بالکل ٹھیک ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہاں انتہائی اہل اور قابل لوگ بالکل صحیح فرما رہے ہیں نہیں ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ہمارا جو خاص طور پر یہ جو میڈیا ہے وہ اس قدر آرگنائزڈ نہیں تھا. اور آرگنائزڈ بھی میں کیا کہوں، میرے خیال میں اس کی اتنا شعور یا اویئرنیس کہنی چاہیے، اگر مجھے اجازت ہے کہ اتنی بے اعتنائی برت رہے تھے، احساس ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اس علاقے کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے. پلیٹ فارم نہیں دے رہے تھے. نہیں، بالکل نہیں ہو رہا تھا. مکس نیوز نے وہ خلا پورا کیا ہے. پوری کی ہے، یقین، کوئی شک نہیں تھی. اچھا خان صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے تعارف میں جو آپ کی ابتدائی تعلیم ہے اور خاندانی پس منظر ہے، ذرا اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. ایسا ہے اپنے کوثر بھائی کہ میری پیدائش جو ہے
وہ میلسی کی ہے. واہ, میرا شہر میلسی. ہاں جی بالکل, میں بھی میلسی کا ہی ہوں. اچھا آپ بھی میلسی کی ہیں, وہ اچھا بہت خوشی ہوئی, یہ تو بہت خوشی ہوئی. اللہ. تو میری پیدائش میلسی کی ہے. اچھا. ہمارا آبائی گھر ابھی بھی میلسی میں ہے. اچھا. قائداعظم روڈ پر. اب تو وہ مارکیٹ بن گئی ہے, وہاں مارکیٹ پیچھے ہے, گھر بھی ہے. اچھا. لیکن وہ تو میرے والد صاحب کاروبار کرتے تھے. تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے میٹرک تک, بلکہ پہلی جماعت سے لے کر میٹریکولیشن تک جی میلسی کی ہے. اچھا. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا فضل و کرم تھا کہ میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک, چاہے وہ ششماہی امتحان تھا, چاہے وہ سہماہی تھا, چاہے نوماہی, چاہے سالانہ, جی ہر امتحان میں فرسٹ, پہلی پوزیشن حاصل کرتے پہلی پوزیشن. اور یہ میلسی اسکول کا آج ابھی تک ریکارڈ ہے یہ. یعنی وہ اسکول ہری پورہ میں تھا, جو ہائی اسکول ہے وہ ہری پورہ میں تھا, وہ ہاں ڈاکخانے والی گلی میں. جی 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 بالکل بالکل. واہ. تو میٹرک وہاں تعلیم حاصل کی. پھر ایف ایس سی جو ہے وہ ایمرسن کالج ملتان سے ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر 1971 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے ڈسٹنکشن کے ساتھ اچھا میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی. واہ. اور اس کے بعد میں 1974 میں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ بطور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جوائن کیا. اور اس دوران سروس کے دوران گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ایم ایس سی انجینئرنگ کے لیے سلیکٹ کیا. اور 1991 میں میں نے ایم ایس سی انجینئرنگ کی برطانیہ سے, ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی سے. اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہاں بھی میں ریسرچ میں, حالانکہ پوری دنیا سے وہاں انجینئرس آئے ہوئے تھے, یورپ سے, افریقہ سے, ایشیا سے, امریکہ, یعنی پوری دنیا سے ایک نمائندہ گروپ تھا انجینئرس کا جو کورس کر رہے تھے. تو اس کے جو ریسرچ جو پروگرام تھا, پروجیکٹ تھا, اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن لی. اور جس پر یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن نے مجھے پی ایچ ڈی کورس کی آفر کی صرف. اور وہ آفر ایسی لیکریٹو آفر تھی کہ جس میں یہاں تک تھا کہ اگر میں اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بھی اگر میں وہاں رکھنا چاہتا تو انہوں نے ان کے بھی تمام اخراجات جو ہے برداشت کرنے کا یونیورسٹی نے انہوں نے انڈرٹیکنگ مجھے دی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بے شک یہاں لانا چاہتے تو لے. لیکن میں نے وہ پروجیکٹ جو ہے یا وہ جو آفر ہے اس واسطے میں نے قبول نہیں کیا. حالانکہ لوگ جو ہے پوری دنیا سے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں, جبکہ آپ کے اس بھائی کو وائس چانسلر یونیورسٹی نے خود بلا کر انہوں نے کہا کہ آپ یہ پی ایچ ڈی کریں, ہم آپ کی ہر جو بھی آپ ہم شرط رکھیں, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو وہ ہم سب پوری کریں گے, لیکن آپ شرط ضرور کریں. لیکن میں نے اس سے معذرت اس واسطے معذرت کر لی کہ وہ جو پروجیکٹ مجھ سے کروانا چاہتے تھے وہ پاکستان سے متعلق نہیں تھا. اچھا. وہ ہمارے اریگیشن سسٹم. میں نے انہیں یہ کہا, میں نے کہا جی کہ آپ پاکستان کے, کیونکہ میں جب یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے جاؤں تو جو علم میں لے کر جاؤں اپنی ریسرچ سے, کم از کم میرے ملک کو تو اس کا فائدہ, میرے سسٹم کو فائدہ پہنچے. اگر میرے ملک اور میرے سسٹم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تو میرے لیے پھر وہ بیکار ہے, وہ ڈگری مجھے نہیں چاہیے. تو لیکن ان کے پاس جو پروجیکٹس تھے ان میں پاکستان کے متعلق کوئی پروجیکٹ نہیں تھا, اس لیے میں نے انہیں معذرت کر کے میں واپس آ گیا. ناظرین, گفتگو جاری ہے. وقفے سے واپسی کے بعد پھر انجینئر ممتاز احمد خان صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے کہ فنون لطیفہ کی طرف ان کی دلچسپی کیسے ہوئی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع,
बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल बोलिया साइकिल की सुबह है शमा अभी मम्मी का है ये दुआ रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल बोलिया साइकिल की सुबह है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल बोलिया साइकिल की सुबह है शमा साइकिल की सुबह है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना हाथों को पास ना आए कभी कोरोना कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराय की जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं?
विज दा मतलब शर्त या सफाई फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से कि उन्होंने वो जो पेशकश उन्हें की गई थी उससे ठुकराया और वो फिर अपने मुल्क वापस आ गए। और जैसा कि मैंने तारुफ में बताया कि इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान जो हैं वो एक हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू होगी। ताहम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि वापस आकर उन्होंने मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया और उसका इख्तिताम कब हुआ। जी डॉक्टर साहब। तो ऐसे है कि 1991 में मैंने MSc की जी, और जब मैं जब MSc करने के तो मेरी प्रमोशन हो गई थी, ठीक है, बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है। तो मैं जब वापस आया तो मैंने लाहौर में ज्वाइन किया और उसके बाद फ़ौरन कुछ अर्से के बाद आप जानते हैं कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कालाबाग डैम की कैंपेन शुरू की, तो उस वक्त मुझे डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट मेरी तैनाती हुई। अच्छा जी हाँ। तो मैंने उस पोस्ट पर, क्योंकि वो इंतहाई अहम असाइनमेंट थी, तो उस पर मैंने काम किया। लेकिन ये कौम की बदकिस्मती मैं ये समझता हूँ कि हम अभी तक कालाबाग डैम जो है वो उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, नहीं हो सका। तो ये सियासी नफरतों की भेंट चढ़ गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ हमारी अपनी अंदरूनी जो सियासत है, एक वो अंसर और कुछ बैरूनी अवामिल भी इसमें शामिल हैं। वो कुछ कुव्वतें जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने जो हमेशा से रही और हमेशा से रही हैं, बिल्कुल सही बात है, पहले दिन से रही हैं, बिल्कुल ठीक। ये उनकी साजिशें भी इसमें शामिल हैं। और हमारे ये जो IPPs हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसमें, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कालाबाग डैम का जो प्रोजेक्ट है ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सका, ताबीर नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी, और होता नजर भी नहीं आ रहा, अभी होता नजर भी नहीं आ रहा। देखिए कौसर भाई, बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसमें मसाइल को हल करने की जुर्रत किस कदर है, अहलियत कितनी है। सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। कितने जरूरतमंद लोग हैं। एग्जैक्टली। ये वो लीडर, मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि वो लीडर जिसको इक़्तिदार का की हवस नहीं होगी, जिसका मतलब इक़्तिदार नहीं होगा, ठीक है जी, मुल्क और कौम की खिदमत होगी, बिल्कुल, मुल्क और कौम का मफाद जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है जी, बिल्कुल इक़्तिदार नहीं, बिल्कुल सही। वो लीडर जो है वो इस मसले को इंशाअल्लाह हल करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, ना उम्मीद नहीं है। दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही, जो कि जिसका हल नहीं मौजूद, हल मौजूद है। सिर्फ बात यह है कि उन लोगों की जरूरत होती है कि जिनमें ये अहलियत हो, बिल्कुल सही, कि वो उसका हल तलाश करें। अच्छा इंजीनियर साहब, अमूमन ख्याल ये है कि शोबा साइंस के जो तलबा हैं वो अदब से कोसों दूर होते हैं। बिल्कुल सही। बल्कि बाद दफ़ा बाद मुंह फट लोग कह देते हैं कि बड़े बेअदब होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे असनाफ़ लतीफ़ा जो हैं उनमें आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किन असनाफ़ लतीफ़ा से आपकी वाबस्तगी है और कितने अरसे से है। माशाअल्लाह। ऐसा है, अपने
कौसर भाई कि बिल्कुल मैं इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस पर फख्र है जी, बिलाशुबा। मेरी यकीनन पेशेवराना लिहाज से मुझे इस पर फख्र है कि मैं एक इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बतौर इंजीनियर जितना मतलब 36 साल मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया। 2010 में मेरी रिटायरमेंट में, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बतौर इंजीनियर मैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है इस बात पर। लेकिन असली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कौम, ये किसी भी माशरे के लिए इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कानूनदान होना, जज होना या कोई और शबे, जितना वो अहम है उतना ही अहम, उससे कम नहीं। ये ठीक है कि वो हमारी रोजी का जरिया, वो एक पेशा जो है, ठीक है, वो रोजी का जरिया भी होता है कि इंसान ने अपने मुआश के लिए जरूरी है, मुआश के लिए वो जरूरी है। लेकिन आपने जैसे बात की अदब की और फनून लतीफ़ा की, मैं ये समझता हूँ, और ये हर इंसान की अपनी एक फहम है, अपना एक फहम है, अपना एक एहसास है कि वो जिंदगी के इन शोबों को, हमारी जो माशरती जिंदगी है उसके ये जो पहलू हैं, इनको आप कितनी अहमियत देते हैं, सही, सब उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। मुझे हकीकत में मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी बच्चा था, मैं स्कूल में था, मुझे हमारे अब्बा जी का, वालिद साहब का जो दफ्तर था, उसके अंदर चार्ट उन्होंने लगे हुए थे, और हर चार्ट के ऊपर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कोई ना कोई नज़म, अच्छा, कोई शेर लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा। मुझे अब याद है कि एक चार्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये आप बचपन से देखते आए। एग्जैक्टली। तो मैं यानी अभी मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं 4वीं 5वीं 6वीं बात में पढ़ता हूँ, तो तब से मौलाना हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है जी, लेकिन ज्यादातर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो उनके बड़े शहदाई थे, वाह, उनके शहदाई थे, तो उन्होंने चार्ट लटकाए हुए थे, वाह। और मेरा जो है शायरी से भी और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह से मेरी जो अकीदतमंदी है, इसकी इब्तिदा वहां से होती है। वाह, घर से हुई यानी? मेरे घर से, बिल्कुल घर से हुई। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने हज़रत अल्लामा की पोएट्री, उनकी शायरी मैंने पढ़ी और उसको समझी, मेरे अंदर और ज़्यादा उनकी अकीदत भी और उनको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। और आज ये सूरत हाल है, हाँ जी, कि मैं ये कहता हूँ, वैसे तो मैं पीरी मुरीदी में बिल्कुल मैं यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर मैं पीरी मुरीदी में मेरा यकीन होता और हज़रत अल्लामा इकबाल अगर बक़ैद हयात होते, तो मैं उनके हाथ पर जाकर बैत कर लेता। मैं बैत कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आपने रूहानी बैत की हुई है? मैंने रूहानी बैत की हुई है, बिल्कुल। और हकीकत है, ये हकीकत है कि उनकी जो पैगाम है और उनकी जो शायरी है, उसने मेरी शख्सियत साजी में बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है। सुभान अल्लाह। मैंने मेरे जो आइडियाज़ हैं और मेरी शख्सियत और ज़िंदगी के मतलब जो मेरा आउटलुक है, जो दीन के मतलब, ठीक है जी, मैंने दीन को भी समझा है तो उनकी शायरी के जरिए, उनके कलाम के जरिए, एग्जैक्टली, अपने दीन इस्लाम की रूह को। बल्कि मुझे याद है कि आपको अल्लामा इकबाल का बहुत सारा कलाम जुबानी याद है। मुझे जुबानी याद और है, इतना फ्लो के साथ आप पढ़ते हैं कि हैरानी होती है। मैं कौसर भाई, मैं आपको बताऊं, मुझे उनसे अकीदत का मेरा ये आलम है कि मैं बरमला कहता हूँ कि अगर मैं इस मुल्क का सदर या वजीर आज़म होता और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अगर वो बकायदे हयात होते, तो मैं लाहौर जब भी जाता, सदर वजीर आज़म की हैसियत से भी, तो सबसे पहले मैं उनके घर हाजिरी देता और उनके घर 1-8 घंटा गुजार कर उनके घर झाड़ू देता, मैं सफाई, उनके घर की सफाई करके
उनका हुक्का वगैरह बनाकर, और फिर उसके बाद मैं बाकी काम के लिए निकलता, सारे कामों के लिए। ये इश्क की मेराज है, ये मेरा इश्क है, ये मेरी अकीदत वो है, क्योंकि मैंने उनकी शायरी से, उनकी फिक्र से बहुत कुछ सीखा है। मैंने दीन इस्लाम सीखा है, मैंने अपनी शख्सियत साजी की है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम जो है, हमारी कौम की आज भी हम बड़े मायूस हैं कि हम अक़वाम आलम में हमारा वो मकाम नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी हमारी कौम, हमारी नई नस्ल जो है, उसकी ज़हनी तरबियत और इस कौम को बहुत बुलंदियों तक ले जाने के लिए आज भी ज़रूरत है कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को आम किया जाए। वाह, यानी गोया आपकी शख्सियत को हमाजहत बनाने में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलीदी किरदार है। बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल करम है, वो तो अपनी जगह है, फजल करम है, हमारे घर का माहौल था, ये था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद कहाँ से तूने इकबाल सीखी है ये दरवेशी के चर्चा बादशाहों में तेरी बेनियाजी का। वाह वाह वाह। अच्छा खान साहब, आपने भी फरमाया, मुझे ये मेरी अकीदत है उनके लिए कि मैंने बचपन से मैंने उनका कलाम को हिफ्ज़ किया, ठीक है जी, और इस उम्र में भी उसकी तमाम उनकी जो बड़ी बड़ी नज़में जो हैं वो आपको ज़ुबानी याद है? मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे शिकवा जवाब शिकवा सारा याद है। अगर आप कहें तो मैं आपको नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फे से वापस आने के बाद इंशाल्लाह खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए
जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने जैसा कि तारुफ में बताया कि इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान सिर्फ़ इंजीनियर ही नहीं हैं, बल्कि वो एक हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। और उन्होंने अभी अपनी गुफ्तगू में फ़रमाया कि अल्लामा इकबाल की शायरी और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े ने और अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़े ख़ुदी है उसने उन्हें इतना मुतासिर किया कि उनकी शख्सियत में बेपनाह निखार आया और बहुत सारी नई जहतें जो हैं वो पैदा हुई। अच्छा, ख़ान साहब को फ़न मौसीकी से भी बड़ी दिलचस्पी है, तो आइए उनसे पूछते हैं कि फ़न मौसीकी से उन्हें कब वाबस्तगी हुई और कौन कौन से उन्होंने साज सीखे। वैसे तो कासर भाई, मैं आपको बताऊं कि फ़न मौसीकी से जो है वो भी, देखिए, कुदरत ने जो हम इंसानों को बनाया है, हर इंसान के अंदर अपनी उसकी एक टेम्परामेंट है, उसकी एक लाइकिंग है, उसके अंदर एक डिसलाइकिंग है, होती है। बिल्कुल ठीक है, एक ऐसी हिस्स होती है। अब मैं आपको बताऊं कि बचपन में जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल की बज़्म अदब बिल्कुल सही, हर हफ्ते बिल्कुल बज़्म अदब होती थी। और मैं अपने स्कूल का सबसे प्रोमिनेंट नात खां था। वाह वाह। मैं हर बज़्म अदब में, मतलब है कि मैं नात पढ़ा करता था। ये
कुदरती तौर पर आप खुश अलहान थे। हाँ जी, खुश अलहान था मैं जी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बचपन से ही ये एक हिस्स मौजूद थी। ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो जो हिस्स तो मौजूद थी, ठीक है जी, उसका जो फिर अमली जो इजहार हुआ वो जब मैं अभी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो तब से वो सिलसिला भी शुरू किया और मैंने मौसीकी की तालीम हासिल की। अच्छा। और उसमें सबसे पहले मैंने बांसुरी अच्छा जी बांसुरी सीखी। ये 1968 की बात है। 1900 आप देख लें कि आज से तकरीबन आधी सदी गुजर गई है। अल्लाह। तो अच्छा, बांसुरी की इब्तिदा की वहां से जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन बिल्कुल वो एक कैजुअल, कोई इतना सीरियस उसको नहीं लिया। ठीक हो गया। तो फिर इंजीनियरिंग कर ली, फिर सर्विस ज्वाइन कर ली तो वो छोड़ दिया। लेकिन 1984 से बाकायदा जैसे एक तालिब इल्म स्कूल और कॉलेज में जाकर बाकायदा तालीम हासिल करता है, तो फिर मैंने मौसीकी की भी तालीम हासिल की बाकायदा असातिज़ा से, जो मौसीकी के असातिज़ा थे, असातिज़ा थे उनसे सीखी की। और फिर उसकी इब्तिदा मैंने जो थी वो हारमोनियम से की। वाह। हाँ जी। तो उसके साथ ही सितार भी सीखना शुरू किया। वाह। ठीक है जी। तो फिर मैं इतना मतलब कि मैंने सीख लिया कि जब मैं एमएससी करने के लिए इंग्लैंड गया तो वहाँ एक इदारे ने मुझे बतौर म्यूजिक लेक्चरर वहाँ जॉब भी किया। तो लेकिन ये जो है, ये जो मौसीकी का जो फन है, फिर ये भी ऐसे होता है कि जैसे जैसे इंसान वो सीखता जाता है, आपके अंदर उसको और से और बेहतर करने की, और से आगे आगे जाने की लगन पैदा होती है। और आज जो सूरत हाल है वो ये है कि मैंने बांसुरी पर भी, सितार पर भी और हारमोनियम पर भी मैंने इतनी मेहनत की है। वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का है कि फन के मतलब उनका जो क्या नुक्ता नज़र है, तो उन्होंने उनके एक दो शेर हैं कि रंग हो या खिश्तो संग, रंग हो या खिश्तो रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फ सौत। वाह वाह वाह। रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हर्फ सौत, मौजदा फन की है खून जिगर से नमूद। नक्श है सब नातमाम खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। कोई फन भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके मिराज जो है, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा हो, चाहे वो कानून का शोबा हो, चाहे वो साइंस का शोबा हो, चाहे वो अदब हो, चाहे वो मुसव्वरी हो, चाहे वो मौसीकी हो, कोई शोबा भी हो, जिंदगी के किसी शोबे में भी जब तक आप खून जिगर शामिल नहीं करेंगे, आप उस फन के मिराज तक। मैंने कई महफिल में आपको ये तमाम जो हारमोनियम और सितार और बांसुरी बजाते हुए देखा, और लोगों की जो महवियत का आलम है, वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो आपकी शख्सियत, चूँकि इंजीनियर है ना सर आप, अच्छा, लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि भाई इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान में ये फ़न भी मौजूद है, और इस कमाल का फ़न के लोग जो है वो पलकें झपकाना भूल जाते हैं। बल्कि काज़ी साहब, कुछ दोस्तों ने से ये सवाल किया कि मुमताज़ भाई आप माशाल्लाह यानी मौसीकी का कोई एक शोबा भी हो तो उसके भी एक मकाम है सारे, बड़े बहुत रियाजत की, बड़ी मेहनत की जरूरत है। मतलब बांसुरी बिल्कुल ऐसी है, मतलब बांसुरी को अगर आप बजाना शुरू करें बहुत मुश्किल साज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत लोग समझते हैं कि बड़ा आसान सा साज है, देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सीखने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब आप उसको बकायदा क्लासिकल के साथ सीखे, वो कहते हैं कि एक साज को बजाने के लिए भी उम्र चाहिए और बड़ी रियाजत चाहिए। आप तीन साज आपने सीखे हैं, आपने इंजीनियरिंग कब की थी? हमें यकीन नहीं आता कि आप इंजीनियर भी हैं। तो मैं उनको एक बात करता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपने जो नाजरीन हैं मैं उन तक भी ये, और ये बहुत बड़ा पैगाम है, ये बहुत बड़ा पैगाम है जो मैं आपकी इस गुफ्तगू के जरिए
इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाना चाहता हूँ, और वो ये है कि दोस्तों का जो ये सवाल है कि मुमताज भाई आप इंजीनियर कब बने थे, आप तो इतने जबरदस्त मौसीकार हैं, जब हम आपको इकबालियात के हवाले से आपको सुनते हैं, आपकी पता लगता है कि आप माहिर इकबालियाती हैं, ये दूसरे शहरों के हवाले से आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो इल्म है, जब हम उसको देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि आपने जिंदगी में सिर्फ शायरी को ही सीखा है, बिल्कुल ऐसी है जी, या शायरों को ही आपने पढ़ा है। फिर जब हम आपको इंजीनियरिंग में देखते हैं कि आपने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लिए हैं और आपने रिसर्च में आप फर्स्ट है, आपको पीएचडी की ऑफर्स हुई हैं, आपको डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया, बिल्कुल सही। और जब हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि अब फिर आपको जब आपकी मौसीकी को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये इतने सारे फन, इतने सारे शोबों में एक शख्सियत में कैसे जमा हो गए, कैसे आ गए, कब किए आपने? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ, देखिए मेरे पास भी यही 24 घंटे हैं जो आपके पास, बिल्कुल सही, ठीक है जी, लेकिन मैंने इन 24 घंटों को ज़ाया नहीं होने, इनमें से 1 घंटा भी ज़ाया नहीं होने, वाह 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 वाह, यानी ऐसी किसी फजूल मतलब है कि शुगल में, बिल्कुल सही, या किसी फजूल, यानी आपने एक टाइम टेबल बनाकर उस पर अमल किया, है, बिल्कुल जिंदगी के हर शोबे को, अपने पेशे इंजीनियरिंग को भी, शेर व शायरी को भी, अदब को भी, तहरीक पाकिस्तान की तारीख को भी, बिल्कुल सही, मौसीकी को भी, अपने जो घरेलू मामलात हैं उनको भी देखा है, बिल्कुल सही, उनको भी, सबको मैंने अपना बैलेंस करके चले रखे, सब वक्त। और ये मैंने कहाँ से सीखा, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो बहुत छोटी, बहुत आजिज़ इंसान हूँ, मेरे ज़ुबान पर तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तो वो ज़बान भी नहीं रखते हैं हमारा कि हम उनका जिक्र भी करें, लेकिन वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन अमली नमूना है। और ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मतलब ये कहा है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन नमूना, और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक वक्त में पैगंबर थे, तबलीग करते थे, दीन को फैलाते थे, सिपा सालार थे, ताजिर थे, जस्टिस थे, उस्ताद थे, वजीर आज़म थे, सदर थे, सिपा सालार थे, हम जो शख्सियत इमाम थे, सब, और उनके पास भी 24 घंटे थे। वाह वाह वाह। तो उन्होंने उन्हीं 24 घंटों में इतने सारे जो है वो किए, और उसके जिंदगी के हर शोबे में गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं कि वो नौए इंसानी की तारीख के कामयाब तरीन इंसान बेशक, बतौर सिपा सालार भी, बतौर मजहबी पेशवा, बतौर हर लिहाज से, बतौर चीफ जस्टिस, बिल्कुल, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, बतौर सदर वजीर आजम, बिल्कुल सही, हर लिहाज से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया के कामयाब तीन शख्स है। तो मैंने कहा कि मैं उधर से ही वो किया है, रहनुमाई मिली आपको लिए कि अगर आप इन्हीं 24 घंटों को अगर आप ऑर्गेनाइज करें, वक्त ज़ाया ना करें गपशप में, ऐसे खेल कूद में, ड्रामे देख रहे हैं जी, फिल्में देख रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, खाओ की सैर सपाटे भी किए, सब कुछ किया है, ठीक है जी, लेकिन जिंदगी के हर शोबे को वक्त दिया है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है आपने सिलसिला किया, और ये उसी का नतीजा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इंजीनियर होने पर भी फख्र है, मेरी बतौर इंजीनियर भी परफॉर्मेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी है कि दुनिया ने उसको तस्लीम किया है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर आज भी बतौर इंजीनियर मेरी शर्फ से अमेरिका में भी लोग जो लेते हैं, ये बतौर इंजीनियर मेरी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सही। इकबालियात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा अबूर हासिल है, और तारीख़ पाकिस्तान पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिए हैं तहरीक पाकिस्तान पर, बल्कि मुझे याद है कि आपके साथ बहुत से प्रोग्रामों में मैं भी शरीक होता रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप भी शरीक होते रहे हैं, आप नज़रिए पाकिस्तान के फोरम पर हमारे साथ आते रहे हैं, आप दूसरे
बल्कि मुल्तान में हल्के खूबसूरत मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप मुल्तान में बहुत सारी समाजी तंजीमों के साथ के उनके प्रोग्रामों में आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, और मैं वहाँ भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ वालों से सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, सैर हासिल गुफ्तगू होती है। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि मैंने कभी वक्त को ज़ाया नहीं किया, और इसीलिए मैं हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं वक्त पर पहुँचता हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया होता है। खान साहब, आपसे दिल तो करता है कि गुफ्तगू इसी तरह जारी रहे, लेकिन वक्त के दामन की तनावें जो हैं वो बड़ी खिंची हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आखिर में सिर्फ अपनी पसंद के कोई भी 2 अशार जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक ज़रा उनकी समातों तक पहुँचाइए, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी, मैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जवाब शिकवा से मैं सिर्फ चंद अशार आप मैं पेश करता हूँ। वैसे तो वो बहुत लंबी नज़म है, वो तो आधा पौना घंटा चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं चंद अशार के जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। ये अल्लामा इकबाल, ये अल्लाह ताला का पैगाम है। अब जो अल्लामा इकबाल की ज़ुबानी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, हज़रत अल्लामा इकबाल ने शिकवा में अल्लाह पाक से शिकवा किया था ना कि हम मुस्लिम उम्मा हम किन हालात से गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ दे, कितनी जिल्लत आमेज़ हमारे हालात हैं, अल्लाह ताला तू हम पर क्यों नहीं रहम करता। हाँ जी, उन्होंने शिकवा किया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो उसका जवाब ये है, जवाब दिया अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल की जुबान में, वो बिल्कुल। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो नेको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, हो नेको नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। और फिर जब उन्होंने शिकवे में अल्लाह ताला से शिकवा किया था कि सफ़े दैर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़े दैर से बातिल को मिटाया हमने, नौवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इसका जवाब फिर जवाब शिकवा में अल्लाह ताला ने दिया कि सफ़े दैर से बातिल को मिटाया किसने, सफ़े दैर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीरों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फरदा। वाह वाह वाह। नाज़रीन, जनाब इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान बहुत सैर हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे, एक हमाजैज शख्सियत के मालिक। और एक शेर जो उनकी नज़र करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि किसी ने आँख से हैरत निकाल कर रख दी, किसी ने आँख से हैरत निकाल कर रख दी, फिर उसके बाद उसे आईने का नाम दिया। माशाअल्लाह। खान साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.